You guys really want this video. Some of you all are commenting on my video and rest of you all commented on my community page that you want to see this video. Let's talk about it. So I gave my CA finals for the first time. My exams did not go as I planned them to go. First of all, I was planning to give both the groups, which I actually did end up giving, but my group 2 preparation was barely there. Still ended up giving the exam. Really bad about it, but at the same time I know I messed up and I don't think like it's the end of the world. I know what all I did wrong. So group 2 का तो अब you guys know कि कितना अच्छा मेरा एग्जाम गया है. So let's not talk about that, but let's talk about group 1 first. My first exam was FR. मैं extremely confident थी because मेरी बहुत अच्छी studies हो चुकी थी उस subject की. But then I went in the examination center and I kind of froze. Like my mind was not minding the way it was supposed to, and my exam was extremely long. Like I was just sitting there and really thinking like, man, this is not a 3 hour exam at all. Like even all the mock tests that I gave and all the studies that I did, I still felt like it was not a 3 hour exam, at least for me. I'm pretty sure that it would be for some people, but I'm just sharing my own experience with you all. When I was giving my exam, I could just see that time is running extremely fast and I was literally not even able to complete all the questions. So that was that, and that was my first exam. Even though my MCQs did went pretty okayish, but I personally did not think the MCQs were that easy. But yeah, it was what it was. Like I couldn't really do anything about it, so I didn't want to just sit there and sulk about it. And then came my next exam, which was AFM, and oh boy, it was one of the worst exams for me because AFM, even though I took my classes from Ajay Agarwal sir, he honestly did teach really, really nice. I really was able to understand everything in the classes, but then where I messed up was I did not revise after I was done with my classes, because even though जैसे मेरी क्लास खत्म हो रही थी मैं वैसे ही उस क्लास को रिवाइज कर ले रही थी, but once my lectures were complete, I did not pick the subject. A huge blunder on my part, because you are not supposed to do that. You have to like re-revise the entire subject before you move on to other things or like other chapters or other subjects, whatever. So I did not do that. Really bad decision on my part. डोंट डू दैट. मेरे MCQ भी बेकार हुए थे एंड मेरा क्वेश्चन पेपर भी बेकार था. देयर वर सम न्यू क्वेश्चंस एंड एग्जाम देते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि तुम एक न्यू क्वेश्चन पे एक मतलब कभी भी देखो हुए क्वेश्चन नहीं है एंड यू लाइक सिट देयर एंड यू वर्क ऑन इट. लाइक टाइम ही नहीं है उस चीज़ के लिए वहाँ पे. एवरी सिंगल एग्जाम वॉज नॉट 3 hours long exam for me. It was way longer, like 4 or 4.5 hour long exams were coming and I just felt like crying. Anyway, so मेरा AFM का exam काफ़ी बेकार हुआ है. And then came next exam. Honestly, AFM के बाद I was done. Like I was like, ग्रुप 2 की वैसे ही बेकार स्टडीज़ हो रखी है, ग्रुप 1 की हो रखी थी अच्छी, एंड इसके भी मेरे इतने गंदे एग्जाम्स जा रहे हैं. सो व्हाट्स द पॉइंट. एंड आई रियली कॉन्टम्पलेटेड स्टडिंग और नॉट स्टडिंग आफ्टर आई केम बैक. डोंट डू दैट. And then I was like, you know what, it is what it is. I should just study because मैं पहले भी already subject को पढ़ चुकी हूँ and audit is like my thing. I love audit subject. So I was like, you know what, I'm gonna give my 100% and we'll see what happens, because ultimately I can't control what has already happened and I can't really change the past, but I can work on my present. So that's what I started doing. And then I studied the entire night. Like I slept at like 4:30ish, and then I went the next day for my exam and it was really nice. Like honestly मेरा सबसे अच्छा पेपर ऑडिट का हुआ है. एंड या MCQ मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे, काफ़ी इजी MCQs लगे मेरे को. बट आई हैव सीन फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ अदर टीचर्स एंड स्टफ लाइक दैट कि MCQs थोड़े अबव एवरेज थे. आई डिड नॉट थिंक दैट, बट ऑब्वियसली अब जैसे मेरे को AFM या FR में थोड़ा मुश्किल लग रहा था तो किसी और को ऑडिट में लग रहा होगा. इट इज़ वट इट इज़. सो मेरा ऑडिट का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ, विच डिड गिव मी सम होप. एनीवे, उसके बाद लेट्स कम टू ग्रुप 2. ऑनेस्टली ग्रुप 1 के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि भाई मैं 2 या 3 घंटे सो रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड. और मैंने आज से पहले कभी भी दोनों ग्रुप साथ में नहीं दिए थे बिकॉज ऑनेस्टली आई डिड नॉट हैव द गट्स फॉर इट. एंड मैं पहले से ही सोच के बैठ जाती थी कि मुझसे दोनों ग्रुप तो हो ही नहीं सकते.
सो दिस टाइम आई डिड नॉट डू दैट. सो मैंने DT का पेपर दिया. इट वेंट ओकेश. मैंने काफ़ी कम चीज़ें रिवाइज कर रखी थी, तो मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ है. बट मैंने जितना पढ़ा था एंड जितना मेरे को एक्सपेक्टेड था उससे बेटर हुआ है. तो विल सी हाउ इट गोज. ऑनेस्टली मेरे को ग्रुप 2 से ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है. उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन्स लगे मेरे. लाइक DT का एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं था. अगर तुमने पहले पढ़ रखा है अच्छे से तो यू कुड क्लियरली लाइक ईजिली क्रैक इट. एंड मेरे को उसके MCQs भी इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहे थे. सो या बट एट द सेम टाइम मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं था, तो मेरा एग्ज़ाम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है. बट लेट्स सी हाउ इट विल बी. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ IDT एंड ये सब्जेक्ट मैंने बेयरली पढ़ रखा था, लाइक 10-15%. तो वी ऑल नो हाउ इट वेंट. इट डिड नॉट गो नाइस एट ऑल. कुछ नहीं आता था मेरे को. आई वॉज वेरी ब्लैंक इन द एग्जाम एंड आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर इट बिकॉज मैंने पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं करी एंड मैंने चीज़ों को ढंग से प्लान नहीं करा. तो दिस इज़ वॉट वॉज गोना हैपन, लाइक वट एल्स कुड हैपन यू नो. सो या IDT का एग्ज़ाम दिया, अच्छा नहीं हुआ. एंड फिर लास्ट पेपर IBS का था, विच वॉज ऑनेस्टली इट वॉज समथिंग. इट वॉज रियली समथिंग. मैंने अपनी लाइफ में पहली बार 5 सब्जेक्ट्स को अपने दिमाग में रख के कोई पेपर सॉल्व करा है एंड इट वॉज ब्रूटल. पहली बात तो 4 घंटे का वो पेपर है, तो मेरे को MCQ ही नहीं मिल रहा कहीं पे भी. ना कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. एक्चुअली 7 सब्जेक्ट्स का वो मिक्सअप आता है एंड भाई पता नहीं क्या है वो, क्यों बना रखा है, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आता. बट इट इज़ वट इट इज़. इतना ज़्यादा सूट केस लेकर जा रखी थी मैं, इतनी सारी बुक्स थी मेरे पास, इतने सारे रेफरेंस मटेरियल्स थे, स्टफ लाइक दैट. एंड अनदर थिंग दैट आई नोटिस्ड वॉज कि मेरे को बिल्कुल भी iPad पे नहीं पढ़ना चाहिए फॉर CA फाइनल्स, विच इज़ वॉट आई वॉज डूइंग. मेरे सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्विंग, सब कुछ मैंने iPad पे कर रखा था. आई एम रैंडमली थिंकिंग कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस हूँ और मुझसे तो भाई आराम से हो जाएगा, क्या बुक ही तो खोल के करना है. बट भाई इतना ईजी नहीं था वो. एंड स्पेशली अगर तुमने कभी भी बुक्स से पढ़ा ही नहीं है, लाइक मैंने हमेशा अपने iPad पे रिसोर्सेज डाउनलोड करके iPad पे पढ़ा है, मैंने सब कुछ हाईलाइट iPad पे कर रखा है. एंड अल्टीमेटली पेपर में जाके तुम्हें नोटबुक से देखना पड़ रहा है या ICI के मॉड्यूल से देखना पड़ रहा है. इट वॉज नॉट गुड फॉर मी. तो दिस इज़ समथिंग दैट आई केम टू द रियलाइजेशन कि ऐसे IBS नहीं हो सकता. एंड या मेरा पेपर ठीक गया है IBS का, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे को उससे भी. मैं बहुत ज़्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट हूँ इस वीडियो में. दैट्स हाउ माई एग्जाम्स वेंट. आई डोंट नो व्हाट टू से और व्हाट टू डू. लाइक ऑल आई कैन डू इज स्टडी एंड लाइक स्टार्ट स्टडिंग अगेन. सो वही कर रही हूँ अब मैं. अभी मेरा मेन फोकस ग्रुप 2 पे है क्योंकि मेरा ग्रुप 2 की काफ़ी कम प्रिपरेशन थी. तो आई थिंक अगर मैं ग्रुप 2 अच्छे से कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा. तो बस वही. एंड IBS के लिए मेरे को अपनी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा चेंज करने की नीड है क्योंकि अपने iPad पे नोट्स देख के, या मतलब मैंने iPad पे इतना कुछ कर रखा है बट इट वॉज वर्थलेस एट दैट पॉइंट बिकॉज इट वॉज यूजलेस. आई कुड नॉट एक्सेस माई iPad एंड डू एनीथिंग अबाउट इट. तो वही है, iPad पे मत पढ़ो. या तो तुम कुछ बहुत ही ज़्यादा जीनियस हो कि तुम iPad पे पढ़ के भी IBS निकाल ले रहे हो. अगर तुम iPad पे पढ़ते पढ़ते IBS का पेपर निकाल रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करो एंड मेरे को भी बता दो कि ये कैसे कर रहे हो, क्योंकि मेरे को सही में लग रहा है कि आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेन एंड लाइक स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज सब कुछ iPad पे है एंड अब मेरे को सब कुछ शिफ्ट करना है. अब मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का PDF निकाल के, मतलब आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अप्रोच. बट लेट्स सी मेरे को मतलब क्या करना चाहिए, या मेरे को बुक से पढ़ना पड़ेगा. आई डोंट नो. आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट IBS. या that's it. That's how my exams really went. And yeah, I am gonna see you all in my next video. इस वीडियो में कमेंट करके प्लीज़ टेल मी हाउ योर एग्जाम्स वेंट एंड what are your plans for like the upcoming exams, if you are giving exams, or like what all are you all up to, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रखे हैं. एंड अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा अच्छे गए हैं प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड टेल ऑल ऑफ अस कि तुमने ऐसा क्या डिफरेंट करा था या तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी, एनीथिंग. लाइक आई एम श्योर इट वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी. सो या दैट्स द डे दैट you all wanted. I am gonna see you all in my next video. I am not crying because I've already done that and I don't think उसको करने से कुछ भी फ़र्क पड़ रहा है लाइफ में. I need to just study harder and that's just what it is. So anyway, I am gonna see you all in my next video. Thank you so much for watching. Please make sure that you hit that subscribe button if you haven't already. And yeah, I'm gonna see you all in my next video. Bye bye.